ہم اپنی نیلی زمین اور چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 4 کروڑ کلومیٹر آگے نکل آئے ہیں۔ وہ سامنے 11 کروڑ کلومیٹر دور ہمارا سورج چمک دمک رہا ہے۔ ہماری زمین اور سورج کے درمیان سامنے وہ دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ یہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ یہ زہرہ ہے، وینس، زمین کا جڑواں سیارہ۔ لیکن جڑواں کیسے؟ زمین تو جنت جیسی ہے، نیلی، حسین، سرسبز، زندگی آمیز کہکہوں اور دوستوں سے بھرپور۔ لیکن یہ وینس، اف، توبہ! آتش فشاں بھی کیا کھولتا ہوگا جو گرمی یہاں ہے۔ وینس کی زمین آگ اگلتی ہے اور بادلوں سے تیزاب برستا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے یہاں۔ لیکن یہ سب ہمیں کیسے پتا ہے؟ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور کی خبر ہمیں کیسے ہے؟ اور یہ وینس جسے رومنز محبت کی دیوی کہتے تھے، جسے ہم صبح اور شام کا ستارہ کہتے ہیں، کیا ہم وہاں رہ بھی سکتے ہیں؟ کیا وینس پر زندگی کے آثار ہیں؟ اور وہ کون ہے جو سورج سے اتنا قریب ہے کہ جل کر بھسم ہو جائے لیکن پھر بھی اس پر برف کے سمندر ہیں؟ ایسا کیوں اور کیسے ممکن ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی کل کائنات سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے اور شام ہوتے ہی ایک ستارہ جو آسمان پر سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے وہ سیارہ زہرہ یعنی پلانٹ وینس ہے۔ وینس ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ تو نہیں، لیکن یہ سب سے روشن کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ زمین کا سب سے قریبی سیارہ ہے۔ دوسری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وینس کے گرد گیسز کے گہرے بادل تیر رہے ہیں۔ یہ بادل اتنے گہرے ہیں کہ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کا 70% واپس ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وینس چاند کے بعد آسمان کا سب سے روشن جسم نظر آتا ہے۔ اور جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو یہی حسین سیارہ امید پرستوں کو صبح کی امید بھی دلاتا ہے۔ لیکن باہر سے یہ جتنا حسین ہے، اندر سے یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے۔ وینس کی سطح پر 250 کلومیٹر تک گیسز کی گہری اور موٹی تہ لپٹی ہوئی ہے۔ ان بادلوں کو چیرتے ہوئے نیچے اتریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر جہنم کی ایک جھلک انسانی زندگی میں دیکھنا ممکن ہو تو یقین کیجئے وہ وینس کی دھرتی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی زمین ہر وقت لاوا اگلتی رہتی ہے۔ جس طرح ہماری نیلی زمین پر درختوں کے جنگل ہیں، وینس پر آتش فشاں پہاڑوں کے بن ہیں۔ ہاں، صرف آتش فشاں ہی ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی۔ یہاں تو ہر دم طوفانی بارش بھی ہو رہی ہے اور وہ بھی تیزاب کی۔ اف میرے خدا! سلفیورک ایسڈ برستا ہے یہاں اور یوں برستا ہے جیسے ساون میں آسمان پھٹ پڑے۔ آتش فشاں اور تیزابی بارش کو ذہن میں رکھیں اور ابھی اور بھی سنیں۔ وینس پر سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ ہماری زمین پر آنے والے طوفانوں کو ہم ہریکین 1، 2، 3، 4 اور 5 میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہریکین 5 دنیا میں کسی بھی طوفان کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے، جس میں درخت اکھڑ جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ طوفان آئے رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہریکین 5 کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ وینس پر جو طوفان گردش کرتا رہتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 360 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تیزابی بارش، تیز ترین طوفان اور 250 کلومیٹر موٹی بادلوں کی تہ، یہ ہے اس محبت کی دیوی کا فرسٹ امپریشن جسے زمین پر رہتے ہوئے ہم نے دل سے چاہا تھا، اور اب وینس کی دھرتی ہم سے کہہ رہی ہے، آپ کو میرے تعارف کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے چاہا تھا کبھی۔ ایسے خوفناک سیارے پر تو کوئی نہیں رہ سکتا، یہاں زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ 250 کلومیٹر اونچی
बादलों की तह की वजह से वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन से बेपनाह ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? यूँ समझें कि ज़मीन पर गैसों का दबाव 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, जबकि वीनस पर यही दबाव होता है 1300 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। हमारे घर यानी हमारी नीली दुनिया की निस्बत 90% ज़्यादा। ये दबाव इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान तो क्या, अगर यहाँ मजबूत गाड़ी भी खड़ी कर दी जाए तो पिचक कर रह जाए। इसीलिए ज़िंदगी की ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल, डेवलप्ड फॉर्म यहाँ मिलना मुश्किल है, लेकिन शायद किसी इब्तदाई दर्जे की ज़िंदगी के आसार तो मिल जाएं। जैसे एक खुलिये पर मुश्तमिल ज़िंदगी, कोई एल्जी, कोई बैक्टीरिया या कम से कम कोई माइकोप्लाज्मा, जो ज़िंदगी की सबसे सादा शक्लों में से एक है। यहाँ ज़िंदगी ना होने की एक दूसरी वजह भी है, वो ये कि ज़िंदगी की एक और लाजमी शर्त पानी और ऑक्सीजन है, जबकि वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना होने के बराबर और वो गैस जो ज़िंदगी की अलामत हरगिज़ नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वीनस की फ़िज़ा में 96% है। ये कम्बिनेशन कितना खौफनाक है, इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि 0.1%, 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यूं यहाँ ज़िंदगी जन्म लेने और आगे बढ़ने का एक सबब पैदा हो जाता है, जबकि वीनस पर यह इक्वेशन बहुत ही उल्टी है। ऑक्सीजन तो एक तरफ, जिंदगी की एक और अहम तरीन शर्त यानी बहता पानी भी तो वीनस पर नहीं है। तो ऐसे में वीनस पर जिंदगी के आसार तलाश करना दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन ये क्या, वीनस की सतह पर तो ग्रेनाइट यानी संगे मरमर मौजूद है, और ग्रेनाइट का पत्थर कभी भी पानी के बगैर नहीं बनता, और वो भी बहुत बड़ी मिकदार में पानी, समंदरों जितना पानी। तो क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ कभी समंदर भी थे? जी हाँ, वीनस शुरू में बिल्कुल ज़मीन जैसा था। अरबों साल पहले जब हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया तो ज़मीन और वीनस एक जैसे थे, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। दोनों पर, ज़मीन पर और वीनस पर, लहरें उठाते समंदर थे। लेकिन फिर वीनस सूरज के करीब होता चला गया और गर्म से गर्म तर होता चला गया। इसके गिर्द मौजूद गैसों का हाला यानी एटमॉस्फेयर इतना मोटा और गाढ़ा हुआ कि वीनस जहन्नुम ज़ार बन गया। सूरज की रोशनी इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल तो हो जाती है, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाती। यही वजह है कि करोड़ों साल तक गर्मी वीनस के अंदर जमा होती चली गई और इसका दर्जा हरारत इतना बढ़ गया कि तसव्वुर भी महाल है। वीनस पर दर्जा हरारत 471 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, बल्कि बाज़ जगहों पर इससे भी ज़्यादा। गैसों के शदीद दबाव, तेज़ाबी बारिश, तूफ़ानी हवाओं और आग उगलते अनगिनत आतिश फिशा पहाड़ों ने साबित किया है कि वीनस हमारे रहने की जगह हरगिज़ नहीं हो सकती। तो वो देखिए, वो जो पिचका हुआ, जला हुआ एक लोहे का ढांचा जो वीनस की सतह पर नजर आ रहा है ना, ये वेनेरा 3 का बचा खुचा पिंजर है। 1966 में इंसान के चांद पर कदम रखने से 3 साल पहले सोवियत रूस ने वीनस पर तहकीकात के लिए वेनेरा प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम का तीसरा मिशन वेनेरा 3 वीनस पर उतरने में कामयाब रहा और 1 मार्च 1966 को वीनस की सतह पर उतर गया, बल्कि सही अल्फाज में कहा जाए तो गिर गया, क्योंकि ये एक फेल लैंडिंग थी। ये एक अनमैन्ड मिशन था, यानी इस मशीन में कोई इंसान सवार नहीं था। लेकिन हुआ ये कि वेनेरा 3 वीनस पर उतरते ही बेपनाह तपिश से जलकर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंतहाई दबाव की वजह से टूट फूट कर नाकारा हो गया। उसने कोई डाटा यानी मालूमात ज़मीन पर नहीं भेजी। इंसान की इस पहली कामयाबी का मलबा आज भी वीनस पर मौजूद है। इस पर सोवियत रूस की मोहर, एक दरांती और हथौड़ा भी नक्श है। अगरचे ये वीनस पर कोई तजर्बात नहीं कर पाया, लेकिन ये वीनस का पहला ज़मीनी मेहमान था।
वनेरा 3 के बाद सोवियत रूस ने चौथा, पांचवां और छठा मिशन वीनस पर भेजा, लेकिन बदकिस्मती से सब नाकाम रहे। इन्हीं नाकामियों से सीखते हुए सोवियत रूस हर नए स्पेसक्राफ्ट को पहले से बेहतर बनाता चला गया। यही वजह है कि जब सोवियत रूस ने वनेरा 7 भेजा तो वीनस का तबाहकुन मौसम भी इसे फौरी तौर पर तबाह नहीं कर पाया। ये प्रोब 23 मिनट तक काम करता रहा और ज़मीन पर सिग्नल्स भी भेजता रहा। इसके बाद वनेरा 8 और फिर वनेरा 9 वीनस पर पहुंचाया गया। ये भी अगरचे 53 मिनट बाद वीनस के गहरे बादलों से होता हुआ वीनस की सतह पर कहीं लापता हो गया, लेकिन लापता होने से पहले पहले वो वीनस के बारे में एक ऐसी खबर दे गया जो स्पेस साइंसेज में एक अजीम कामयाबी थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वीनस की सतह की पहली तस्वीर है। ये वनेरा 9 ही ने बनाई और ज़मीन पर भेजी थी। और ये तस्वीर जो वीनस की पहली रंगीन तस्वीर है वनेरा 13 ने 1985 में वीनस से हमारी ज़मीन पर भेजी थी। सोवियत रूस समेत अब तक अमेरिका और जापान के कुल मिलाकर 40 के करीब स्पेसक्राफ्ट्स वीनस के लिए जा चुके हैं। कुछ कामयाब रहे और कुछ नाकाम, लेकिन वो मिशन जिसने हमें वीनस का नक्शा दिया नासा का पायोनियर मिशन था, जिसे 1978 में लॉन्च किया गया था। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसे वीनस की सतह पर उतरना नहीं था, बल्कि वीनस के गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी तस्वीरें लेना और ज़मीन पर सिग्नल्स के ज़रिए भेजना थी। पायोनियर ने 12 साल अपना काम खूब ढंग से किया। इसी की बदौलत हमें पता चला कि वीनस पर माउंट एवरेस्ट से बुलंद एक पहाड़ और अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से गहरी खाइयां भी मौजूद हैं। 1992 में पायोनियर वीनस ऑर्बिटर रिटायर्ड हो गया और वीनस में गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन यहाँ एक बार फिर रुकिए और सोचिए कि करोड़ों किलोमीटर दूर से ये मशीनें ज़मीन पर सिग्नल कैसे भेजती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते हैं। फर्क है तो सिर्फ फासले का। रिमोट कंट्रोल से सिग्नल्स चंद फीट के फासले तक जाते हैं, जबकि स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल्स करोड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। स्पेसक्राफ्ट्स जब किसी सैयारे या चांद पर उतरते हैं तो इनमें पहले से एक एंटीना नस्ब होता है। इसी एंटीने से रेडियो सिग्नल्स ज़मीन पर भेजे जाते हैं। इन सिग्नल्स को ज़मीन पर मौजूद ये बड़े बड़े रेडियो एंटीनास कैच करते हैं और मुतलका स्पेस लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। इन लेबॉर्ट्रीज में पैगामात को डीकोड करने का पूरा निज़ाम मौजूद होता है, क्योंकि ये सिग्नल्स बाइनरी कोड्स यानी सिर्फ 2 हिस्सों 0 और 1 पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ में होता है। इसी से हमें वो सब मालूमात मिलती हैं जो चांद और मरीख समेत उन सैकड़ों मकामात से आते हैं जहां इंसान ने प्रोब्स या तहकीकाती मिशंस भेज रखे हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मुश्किल भी है, और वो ये कि ज़मीन तो हर वक्त गर्दिश कर रही होती है। अगर एक रिसीवर ज़मीन के इस मुकाम पर है तो 12 घंटों बाद वो ज़मीन की दूसरी तरफ होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ वो सिग्नल्स कैसे रिसीव करेगा। इस मुश्किल का हल ये निकाला गया कि ज़मीन के गिरदा गिर्द बहुत से ऐसे ही एंटीनाज मौजूद हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक भी हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए किसी भी वक्त सिग्नल्स मिस नहीं होते। इसी तरह जिन सैयारों पर ये प्रोब्स यानी स्पेस क्राफ्ट्स भेजे जाते हैं वो भी तो गर्दिश कर रहे हैं। इन पर जब मशीन हरकत करती हुई सतह के दूसरी तरफ चली जाती है तो वो कैसे सिग्नल्स भेज सकती है। वो इस तरह कि जिस सैयारे या चांद पर तजर्बात के लिए खलाई मशीन को उतारा जाता है तो उसी सैयारे के मदार में मुसलसल एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट हरकत करते रहते हैं जो मशीन से सिग्नल वसूल करके ज़मीन की तरफ भेज देते हैं, और इन सिग्नल्स को वही ताकतवर एंटीनास या रिसीवर्स कैच कर लेते हैं। इस सारे सिस्टम को डीप स्पेस नेटवर्क या DSN कहते हैं। ये सिस्टम इतना तरक्की याफ्ता है कि आम सिग्नल्स से 20 अरब गुना कमज़ोर सिग्नल्स भी कैच कर लेता है, क्योंकि कुछ तहकीकाती मिशंस इंसान अरबों किलोमीटर दूर भेज चुका है ना हैरत की बात। इसकी तफसील भी हमारे रास्ते में आएगी, लेकिन फ़िलहाल इस हैरतनाक मंजर का सामना करें कि वीनस निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है जहां सूरज मगरिब से तुलू होता है।
कहते हैं क़यामत के करीब सूरज मगरिब से निकलेगा। इस हिसाब से वीनस पर हर रोज़ क़यामत उतरती है, क्योंकि यहाँ सूरज मगरिब से ही तुलू होता है। कुछ लोगों के जहन में ये ज़रूर सवाल पैदा होगा कि मशरिक तो वही होता है जहाँ से सूरज तुलू हो, तो एक सैयारे पर जहाँ हर बार एक ही सिमत से सूरज तुलू हो, हम कैसे कह सकते हैं कि ये मगरिब से तुलू हुआ है? तो वाक़या ये है कि अगर कुतुब शुमाली सितारे के हिसाब से देखें तो निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों की गर्दिश घड़ी की सुइयों के उलट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए सब सैयारों के मशरिक और मगरिब एक जैसे हैं, जबकि सिर्फ इस एक सैयारे की अपने महवर के गिर्द गर्दिश घड़ी की सुइयों की तरह ही है, यानी क्लॉकवाइज। इसलिए बाकी निज़ाम शमसी के हिसाब से देखें तो यहाँ उल्टा निज़ाम चल रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वीनस पर सूरज ज़मीन और दीगर सैयारों के मुताबिक मगरिब से तुलू होता है और मशरिक में ग़रूब हो जाता है। ये गर्दिश सिर्फ उल्टी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सुस्त भी है, इतनी सुस्त कि वीनस का एक दिन ज़मीन के 243 दिनों जितना तवील होता है। मतलब ये कि चूंकि वीनस सुस्त है, इसलिए अपने महवर के गिर्द जब उसका एक चक्कर पूरा होता है तो ज़मीन, हमारी ज़मीन, उस वक्त तक अपने महवर के गिर्द 243 चक्कर लगा चुकी होती है। एक चक्कर मतलब एक दिन। और इससे भी मज़े की बात यह है कि वीनस पर साल दिन से छोटा होता है ना हैरत की बात। जितनी देर में वीनस सैयारा अपने महवर के गिर्द एक चक्कर लगाता है, इससे पहले 225 दिनों में ये सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करके दूसरा शुरू कर चुका होता है। यानी अगर आप वीनस पर रहने का कोई ठिकाना ढूंढ निकालें तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि आप एक दिन में 2 बार अपनी सालगिरह मना लें। कहीं ऐसा ना हो हम वीनस पर खड़े खड़े दिनों में बूढ़े हो जाएं। क्यों ना वीनस को छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, वो सामने सूरज की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना याद रहे कि हम इस वक्त ज़मीन से 7 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। आगे का सफ़र इतना दिलचस्प है कि वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उफ, यहाँ सूरज की गर्मी बेपनाह है, नाकाबिले बर्दाश्त है। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ठहरिए, ये सूरज के सुनहरे थाल पर जो एक नुक्ता सा तेज़ी से तैरता जा रहा है, ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे पहला और सबसे छोटा सैयारा मरकरी है। इसकी सतह पर खड़े होकर देखें तो आसमान एक हैरतनाक मंजर पेश करता है। मरकरी का आसमान काला स्याह है, रात से भी ज़्यादा तारीक तर। हमारी ज़मीन के जैसा खूबसूरत नीलगू आसमान यहाँ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि आसमान का असल रंग काला ही है। बल्कि ज़्यादा दुरुस्त बात यह है कि वो चीज़ जिसे हम आसमान कहते हैं असल में कोई रंग नहीं रखती, और आसमान कोई चीज़ भी नहीं है बल्कि एक अनलिमिटेड, लामुतनाही, बेकरां फैला हुआ खला है जिसका कोई रंग नहीं है। तो फिर हमें ज़मीन से आसमान नीला क्यों नज़र आता है? इसकी वजह जानने के लिए पहले ये जान लें कि सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। ये रंगों का फ़र्क दरअसल वेवलेंथ का फ़र्क है। सुर्ख रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जबकि नीले और वायलेट की सबसे कम होती है। जब सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से टकराती है। रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है कि मॉलिक्यूल्स उन्हें रोक नहीं पाते और ये साफ निकलकर ज़मीन पर पहुंच जाती हैं। जबकि नीले यानी ब्लू और बनफशी यानी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ इतनी कम है कि ये मॉलिक्यूल्स से टकराकर फ़िज़ा में हर तरफ बिखर जाते हैं। यही वजह है कि हमें आसमान नीला नज़र आता है। लेकिन आप पूछेंगे कि वॉयलेट कलर भी तो फ़िज़ा में बिखरा होता है, बल्कि ज़्यादा बिखरा होता है, तो हमें आसमान बनफशी या वॉयलेट क्यों नज़र नहीं आता? इसका जवाब है हमारी आँख की लिमिट। जी हाँ, हमारी आँख की बायोलॉजी ऐसी है कि ये वॉयलेट की निस्बत नीले रंग की वेवलेंथ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी ज़्यादा आसानी से समझती है। इसीलिए हमें आसमान पर फैला बनफशी रंग नज़र ही नहीं आता, हालांकि वो वहाँ होता है।
लेकिन हाँ, चंद जानवर ऐसे हैं जिनकी आंख छोटी से छोटी वेवलेंथ को भी कैच कर लेती है, जैसे शहद की मक्खी और उक्काब वगैरह। और ये ऐन मुमकिन है कि इन जानवरों को आसमान नीला नहीं बल्कि वॉयलेट यानी कुछ ऐसा नजर आता हो। चूंकि मरकरी के गिर्द किसी किस्म की गैसों का कोई घेरा नहीं है, इसलिए सूरज की सतरंगी रोशनी यहाँ सीधी पड़ती है और सूरज सुनहरा और आसमान तारीक स्याह नजर आता है। न सिर्फ ये कि मरकरी की कोई फिजा नहीं बल्कि वीनस ही की तरह इसका कोई चांद भी नहीं है। वजह यह है कि मरकरी की कशिश सकल यानी ग्रेविटी इतनी कम है कि ये अपने गिर्द किसी बड़े खलाई पत्थर को जकड़ नहीं पाता, उसको अपनी तरफ खींचकर अपने गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर नहीं कर पाता। इसके करीब आने वाले तमाम शहाबिये यानी मेटेराइट्स या तो इससे टकरा जाते हैं या इससे 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर दहकते और लपटें फेंकते सूरज में गिर जाते हैं। और क्यों ना गिरे, आखिर हमारे सूरज की कशिश भी तो गजब की होती है। कायनात में जो जिस्म जितना ज़्यादा वज़न रखता है उतनी ही उसकी कशिश भी ज़्यादा होती है। मरकरी एक छोटा सैयारा है, इसका वॉल्यूम और मैस दोनों ज़मीन के वॉल्यूम और मैस का सिर्फ 6% है, लेकिन इसकी कशिश सकल ज़मीन की कशिश सकल का तकरीबन 40% है। यही वजह है कि अगर आपका वज़न ज़मीन पर 70 किलोग्राम है तो मरकरी पर ये सिर्फ 30 किलोग्राम रह जाएगा। आप वज़न कम करने के लिए मरकरी पर जा सकते हैं, बस इतना सा मसला है कि ये कम शुदा वज़न दोस्तों को दिखाने के लिए शायद आप वापस ज़मीन पर ना आ सकें। लेकिन अगर वज़न कम करने के लिए आप मरकरी पर आ जाएं तो कोशिश करें कि यहाँ एक से ज़्यादा दिन ना गुजारें, क्योंकि मरकरी वीनस से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। यहाँ दिन बहुत बड़े और साल बहुत छोटे होते हैं। यहाँ का एक दिन पूरे 2 साल के बराबर होता है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। मरकरी अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 176 दिन में मुकम्मल करता है, यानी तकरीबन 6 माह में, जबकि यही मरकरी सूरज के गिर्द सिर्फ 88 ज़मीनी दिनों में चक्कर मुकम्मल कर लेता है। इस तरह मरकरी का एक दिन इसके 2 साल से भी कुछ बड़ा होता है। सूरज के इंतहाई करीब तरीन होने की वजह से मरकरी हमेशा 2 इंतहाओं के दरमियान रहता है। अगर दिन में यही सैयारा 800 डिग्री की नाकाबिले बर्दाश्त तपिश से दहक रहा होता है तो रात में इसका दर्जा हरारत -275 डिग्री तक गिर भी जाता है। निज़ाम शमसी यानी अपने सोलर सिस्टम के किंग सूरज का पड़ोस चाहिए तो इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा। सूरज के इतने करीब होने के बावजूद इस पर अब एक भी आतिशफशान नहीं है। हाँ, कभी होते थे, लेकिन अब सब मर खप चुके हैं। इसीलिए मरकरी एक मुर्दा सैयारा है, यानी इसके दामन में ना तो आग है और ना इसका कोई एटमॉस्फेयर या मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसकी जिंदा दिली देखिए कि कहाँ आग की लपटें बरसाते सूरज का पड़ोस और कहाँ इसके किनारों पर छुपी बर्फ की झीलें। जी हाँ, मरकरी पर आतिशफशां तो नहीं, बर्फ जरूर है, लेकिन कहाँ? तकरीबन उसी जगह जहां जमीन पर होती है। 1991 में जब जमीन से एक रेडार ने सिग्नल्स के जरिए पता चलाया कि मरकरी पर बर्फ मौजूद हो सकती है तो साइंसदान चकरा कर रह गए थे कि सूरज के बिल्कुल सामने मौजूद नन्हे मुन्ने सैयारे पर बर्फ, ये कैसे मुमकिन है? फिर इसकी तस्दीक के लिए इंसान ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए। 2012 में जब मरकरी पर भेजे गए नासा के खलाई मिशन मैसेंजर ने ऐसी तस्वीर भेजी जिनमें बर्फ की मौजूदगी साबित हो गई तो खलाई तहकीक में दिलचस्पी रखने वाले खुशी से तड़प उठे। ये बर्फ मरकरी के शुमाली हिस्से में गहरे गढ़ों के अंदर थी। ये ऐसी जगह थी जहां करोड़ों बरस से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी। ये गढ़े न जाने कब से मुस्तकिल अंधेरे में थे, इसीलिए यहाँ जो बर्फ गिरी वो सूरज की रोशनी और हिद्दत से महफूज रही। जब ये बर्फ दरियाफ्त हुई तो खला में किसी सैयारे पर जिंदगी के आसार तलाश करने वालों की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। बहुत सौ को एक लम्हे के लिए ये ख्याल भी आया कि शायद इसी बर्फ की तह में कहीं कोई एक खुलिये पर मुश्तमिल जिंदगी मौजूद हो, कहीं कोई एक जरासीम, कोई एक अमीबा, कोई एक बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह।
लेकिन मरकरी की तहकीक के लिए जाने वाले नासा के 2 प्रोग्राम्स मैरिनर और मैसेंजर दोनों से वहाँ पर ज़िंदगी की तस्दीक नहीं हो सकी। इन दोनों मिशंस में से मैरिनर 10 33 साल की तहकीकात के बाद रिटायर्ड हो चुका है और खला में सूरज के करीब एक मदार में बेमकसद रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है। लेकिन दूसरा मिशन मैसेंजर जो एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट था, वो 4 साल मरकरी के गिर्द तहकीकात करने और मरकरी की शानदार तस्वीर ज़मीन पर भेजने के बाद अप्रैल 2015 में मरकरी ही पर क्रैश लैंडिंग करके ख़त्म हो चुका है। आज हम सैयारे मरकरी के बारे में जो भी ताज़ा तरीन मालूमात रखते हैं वो इसी रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट मैसेंजर की भेजी हुई तस्वीर की वजह से मुमकिन है। इन दोनों के बाद भी मरकरी के लिए नए मिशन रवाना किए जा रहे हैं और कुछ किए जा चुके हैं। दहकते, खौलते, आग बरसाते सूरज के सामने एक नन्हे मुन्ने सैयारे पर जिंदगी भले दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन चलें बर्फ तो दरियाफ्त हो गई ना। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ बर्फ आई कहाँ से? कहते हैं वहीं से आई जहाँ से ज़मीन के लिए आई थी। फिर ज़मीन पर बर्फ कहाँ से आई? एक पागल सूरज के गिर्द चादर तानने का मंसूबा क्यों बना रहा है और ये कैसे मुमकिन है? ये मंसूबा है क्या? सूरज से होते हुए आपको एक ऐसे सैयारे पर ले जाएंगे जहाँ वाकई इंसान जाने वाला है और हो सकता है आया भी वहीं से हो। इंसान वहाँ कैसे जाएगा, कैसे रहेगा और आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन कुल कायनात के अगले हिस्से में। हमारे ज़मीन से कायनात के सफ़र को आप माजी का सफ़र कह सकते हैं, क्योंकि हम जूं जूं कायनात में आगे बढ़ते हैं दरअसल माजी में सफ़र करते हैं। ऐसा क्यों है ये आप इस सफ़र में साथ साथ जानते चले जाएंगे। इस सफ़र की पहली किस्त जिसमें हम आपको चांद के रोशन और तारीख दोनों सिमतों में ले गए थे, चांद की देवमालाई कहानी भी दिखाई थी, साइंसी तजर्बात करते रोबोट्स और इंसान दिखाए थे, ये भी बताया था कि वहाँ किस खूबसूरत लड़की का नाम लिखा है और किसने लिखा है। अगर आपने कुल कायनात की ये पहली किस्त नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए। इस्लामी तारीख़ के एक अजीम हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान हयात देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, जबकि पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन मोड़ कारगिल की मुकम्मल कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।